Hello, check. हेलो हेलो हाँ चेक. कौन सा कैमरा ऑफ हो गया मेरा फोन का? यही होगा. आवाज आ रही है. देखिए तो सेटिंग आ गया सब. लैपटॉप से उसको ऑफ कर दीजिए. ये वाला पॉपअप जो है. ठीक है. तो आप पहले वाला डायरेक्टली कर देना. इट गो स्ट्रेट. इंट्रोडक्शन वगैरह सब कर देते हैं ना नॉर्मल. तो स्लाइड थोड़ा पीछे. जय सद्गुरुदेव. A warm and heartfelt welcome to everyone gathered here at our place and all who are watching us on Zoom and Facebook. I'm Srinivas Patnaik, a dedicated practitioner of Vihangam Yoga, meditation for over more than 4 years now. Alongside my maritime engineering background, I now manage a diverse array of businesses in maritime and trading sectors. Why I share the details about myself, the reason lies in the profound question that we all encounter at some point: who am I? Is this my identity defined solely by my education, accomplishments, and physical existence in this lifetime? There are several questions that we all have. And Svarved has all the answers. It's just for you to have the questions in your mind and read the Svarved and be associated with Vihangam practices. Before we embark on our journey today, allow me to briefly outline our session. We will commence by introducing to you the Vihangam Yoga organization and its Singapore chapter. After that, we will begin our session with a welcoming chant and devotional song. This will be followed by Udghosh and reading of Dohe from Svarved. Now let me acquaint you with Vihangam Yoga community in Singapore and its parent organization based in India. Vihangam Yoga stands as a pioneer in advanced meditation techniques with the primary goal of elevating human life at all levels. Our foundation, the Sadguru Sadafal Dev Vihangam Yoga Sansthan, was established in 1924 by the revered Sadguru Sadafal Devji Maharaj. After 17 years of intense meditation practice, he unveiled this profound meditation technique. Today, under the guidance of the present Sadguru, His Holiness Sri Swatantra Devji Maharaj, Vihangam Yoga has expanded its reach into more than 45 countries and touched the lives of over 5 million individuals worldwide. Our international headquarters is situated by the sacred Ganges River in Prayagraj, India. Notably, we also hold the distinction of being an affiliated member of the United Nations Economic and Social Council.
Our gatherings like this one are rooted in the teachings of Swarved, a spiritual constitution or encyclopedia. It is essential to mention the Swarved Mahamandir located in Varanasi, which can accommodate up to 20,000 practitioners at one time. This monumental structure was inaugurated, the first stage of it was inaugurated recently by our Prime Minister, Narendra Modi ji. For all those listening now, visiting the Swarved Mahamandir should undoubtedly be a cherished aspiration. A few videos are being displayed on the screen now. This is about the recent event that was held, the 100 years completion of the Sansthan, where 25,000 Havan Kunds this is inside the Swarved Mahamandir. It's inaugurated by our Prime Minister. The interiors are impeccably carved with sculptures, wood crafting. It's a site which all should definitely visit once. The Swarved Dohe are embedded and engraved into the walls. The complete Swarved of around 4,000 couplets is engraved there. Several activities are held in Singapore, which you are on the display on the screen now. Daily meditation, weekly satsang, which is one which we are doing now, outdoor activities, monthly kids meditation, quarterly Swarved. We do corporate meditation sessions as well and annual blood donation camps. And every quarterly we hold the MGMS lifestyle fair. So the latest information for all these is available in the website. Please do visit our website www.vihangamsg.com. Now let's proceed to the Swagat and Mangal Gan. इसके बारे में हिंदी में कुछ ऐड करना हो तो ओम जी, would you like to add something on Hindi about in short for those listeners who are listening in Hindi? कुछ ऐड करना है? स्वागत कर लेते हैं. Okay, ठीक है. So we do Swagat Gan first and Mangal Gan. Okay. To translate the Swagat and Mangal Gan in short, this song is composed by Sri Sadguru Sadapal Ji Maharaj to welcome the eternal Sadguru entity. Song for peace and prosperity this is a prayer for world peace and prosperity. The explanation in English is also mentioned below there. Let's start Swagat Gan and Mangal Gan. I would request all sitting here and out there on the Zoom to sing after me in the section where I play the music. Please repeat the verses after me.
मंगल का। शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता आत्म राज्य बनाइए, देश भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता आत्म राज्य बनाइए, देश भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक ज्ञान सदा फल नीति स्वर अपनाइए। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। जय सतगुरुदेव। Now I invite Chandanji to recite the Udghosh. As you can see on the screen, the Swarved is on display. I request all of you to read Swarved on a regular basis. Consists more than almost 4,000 couplets and reveals all the secrets of spirituality. As I said earlier, we always recommend that you read this Swarved a few couplets every day before meditation. Chandanji, over to you for Udghosh. थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी। आइए अब हम सब चलते हैं स्वरवेद में स्वामी जी द्वारा रचित उद्घोष को सुनने की तरफ। स्वामी जी ने हम सबको उद्घोष के माध्यम से यह संदेश दिया है कि अगर हम स्वामी जी द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते हैं तो वो हमें इस जीवन रूपी भवसागर से पार लगा देंगे। जो उन्हें मिला है वो हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें स्वामी जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरति उलटी के गगन चढ़ाऊं, सुरति उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम
मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती बर से, अनुभव दर से मोती बर से, अमियन हद अनवाऊंगा। अद्भुत मार्ग शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णों, वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णों, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा, कहें सदा फल परमानंदा। आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Now we move to the next segment, which is Swarved Ka Dohe, for which I invite Omji to recite. Over to you, Omji, for Swarved couplets. Jai Sadgurudev to you, everyone. सर्वेद सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की 17 वर्षों की घोर तपस्या, समाधि जन्य अवस्था में प्राप्त अनुभव जो ज्ञान, उसका लिपिबद्ध रूप भाष्य के रूप में हम सबके सामने उपस्थित है, जिसका हम पंचम मंडल पंचम अध्याय करीब 5 दोहों का पाठ करने जा रहे हैं। आप सभी तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का अनुसरण करें। पंचम अध्याय सेवा सत्संग। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। आर्त दीन
एवं अधीन हो, सद्गुरु के आज्ञा नियम में रहकर धन, शरीर, मन तथा वाणी से उस संत शिरोमणि सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। सद्गुरु आज्ञा नियम में सहज स्वभाव से वर्तकर उनके चरणों में भक्ति करके उसी के अवलंबन छाया में रहकर उनके सत्य सिद्धांत का भूमंडल में प्रचार करें। मनमुखी स्वतंत्र रहकर कोई सद्गुरु के सिद्धांत का प्रचार नहीं करता। कुटिल स्वभाव वाला सेवक सद्गुरु आज्ञा नियम को छोड़कर मनमुखी विषयाराम के लिए प्रयास करता है, इसलिए इसके कार्य दुखदायी, अशांतिकारक और पतनशील होते हैं। अतः सद्गुरु शरण में शुद्ध सरल स्वभाव से रहकर अनन्य शरण हो उनकी भक्ति करनी चाहिए। अनन्य शरण आस्तिक्य से सद्गुरु सेवा आय, सद्गुरु नियम न टूटई, प्राण जाय तो जाय। अनन्य शरण एवं आस्तिक्य भाव से सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु के नियम मर्यादा का उल्लंघन कभी ना हो, भले ही अपने प्राण चले जाए। जीवन डोरी आप से दीजे सद्गुरु हाथ, धार वृत्ति गुरु भाव में जीवन सद्गुरु साथ। अपने जीवन की डोरी सद्गुरु के हाथ में देकर अपने स्वभाव को गुरु के विचार के अनुकूल कर उनकी शरण में रहना चाहिए। आप मिटाय कर सद्गुरु शरण ही लाग, एक संग गुरु आप नहीं, एक ज्ञान गुरु जाग। मैं और मेरा अपना ममत्व, अभिमान, इन दोनों को छोड़कर सद्गुरु के संबंध करें। एक साथ आप और गुरु नहीं रह सकते, इसलिए जीवन में एक गुरु और उनका ज्ञान ही सदैव जागृत रहे। जय सद्गुरुदेव। Thank you, Omji, for reading the Swarved couplets. Now we go to the next section, which is bhajan. And for bhajan, I invite Chandanji. Over to you, Chandanji, for the bhajans. जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुख से क्या विनती करूं, अंतर्यामी देव, जानत जन उर भाव को, कौन छिपा जन भेव। सद्गुरु सुकृत देव जी, सदा रहे मम साथ। मुझ चिंता किस काम का, जा पर प्रभु कर हाँ। अन्य भरोसा कोई नहीं, केवल आप आधार। मन वच काया कर्मणा, जीवन आप आधार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे
बंदी छोर, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर, यह 100 बार निहोर। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक प्रधान उपदेष्टा हम सबके परम आदरणीय संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे लिए यह सौभाग्य का क्षण है कि आप सबके समक्ष आज एक भजन रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विहंगम योग सिंगापुर संत समाज के सबल स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय उपदेष्टा प्रचारक आदरणीय सुभाष जी को मेरा प्रणाम। विहंगम योग सिंगापुर संत समाज के दूसरे सबल स्तंभ आदरणीय सौरभ जी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय गुरु भाई ओम जी, आज के सत्संग के आयोजक श्रीनिवास जी, संध्या जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम और यहाँ पधारे सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम है। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हम सब एक साथ इस धरा पे उपस्थित हुए हैं ताकि सद्गुरु की वाणियों का श्रवण कर सकें, सद्गुरु के ज्ञान की चर्चा कर सकें। आज जो भजन मैंने लिया है वह शब्द प्रकाश से है। शब्द प्रकाश की रचना सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने की थी। इस भजन के माध्यम से सद्गुरुदेव ने हम सबको यह संदेश दिया है कि सद्गुरु के बिना अज्ञान की निवृत्ति संभव नहीं है। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इस भजन के माध्यम से बंदर, सुग्गा और कुत्ते का उदाहरण देकर हम सबको समझाया है कि कैसे भयभीत होकर ये लोग फंस जाते हैं और अपना प्राण त्याग देते हैं। मनुष्य जो है वह भी पुस्तकीय ज्ञान से लिप्त होकर अक्षरों में उलझकर अपने आप को पहचान नहीं पाता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है। सद्गुरुदेव ने कहा है कि जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं तो अपने शरणागत शिष्यों को परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं, तब उस शिष्य का उद्धार होता है और वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर आनंद प्राप्त करता है। अतः मानव को अपने जीवन की पूर्णता के लिए सद्गुरु खोजकर उनके चरणों में समर्पित होकर अपना जीवन समर्पित करना चाहिए और अपने आप को इस जीवन रूपी भवसागर से पार करना चाहिए। तो आइए हम सब इस भजन का आनंद लेते हैं जो कि शब्द प्रकाश में स्वामी जी ने इसकी रचना की है। बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, 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 बिन सद्गुरु नहीं, बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा। मरकट मूठ भ्रम में बांधे, मरकट मूठ भ्रम में बांधे, पुपली में बांधत, पुपली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूखे, जैसे कांच मंदिर स्वान भूखे, फट की शिला गज, फट की शिला गज तोड़े दसनवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा, बिन
सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। वैसे आत्म पौ नहीं चीन्हे, वैसे आत्म पौ नहीं चीन्हे। भूले बावन काल गरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। सदा फल सार शब्द गुरुदेवे, सदा फल सार शब्द गुरुदेवे। ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नहीं, बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नहीं छूटे भरमवा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Thank you, Chandanji, for the wonderful recital of a bhajan from Prakash. We'll move on to the topic of discussion today, which is basically the concepts of Vihangam Yoga. And to speak, let me introduce our speaker, Mr. Subhash Chandraji, one of the co-founders of the Vihangam Yoga Singapore organizations, and has been associated with Vihangam Yoga since childhood, and an authorized Vihangam Yoga meditation instructor. He is an actuary by profession and a director in a global organization in the reinsurance domain for more than a decade. Studied at ISI Kolkata and worked in the RBI, the India Central Bank. I invite Subhaji to throw light on the concepts of Vihangam Yoga. Over to you, Subhaji. ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छो। मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहो। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव। अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। व्यक्त और अव्यक्त रूप में विराजमान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। यहाँ
आज के इस सत्संग के आयोजक श्रीमान श्रीनिवास जी, संध्या जी, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत आभार और प्रणाम। सौरभ सिन्हा जी, चंदन जी, राखी जी, ओम जी, आप लोगों को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मणिकांत जी, अमित जी, आर्य जी और गुरु बहन, आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और फेसबुक में जितने भी अन्य जिज्ञासुगण आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों को भी बहुत बहुत आभार आज के इस समय को निकालने के लिए। तो आज के इस सत्संग का जो मुख्य विषय है, कंसेप्ट्स ऑफ विहंगम योग। क्या है विहंगम योग, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा होगी। और आज हम लोग थोड़ा ध्यान भी करेंगे एक साथ मिलकर। हम सभी लोग आज मिले हुए हैं काफ़ी समय के बाद, तो अच्छा होगा कि हम सब लोग एक साथ ध्यान भी करें। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी यह चर्चा हो जाए कि आखिर विहंगम योग है क्या। तो विहंगम जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है पक्षी। विहग, विहग पक्षी को कहते हैं, और गम अर्थ हुआ उसका मार्ग। विहंगम अर्थात पक्षी का मार्ग। तो पक्षी का कैसा मार्ग, आखिर पक्षी का ऐसा कौन सा मार्ग है जिसकी वजह से यह शब्द आया विहंगम। तो इसको थोड़ी सी और विस्तृत ढंग से समझने के लिए आइए कुछ और चीजों को समझते हैं पहले। अगर चलने के आधार पर, समझने के आधार पर अगर हम इसे जाने, तो एक होती है चींटी, जिसे चलने के लिए आधार की आवश्यकता है। या जमीन पर चले, या ऊपर सीलिंग पर चले, दीवार पर चले, या पेड़ पर चले, पत्ती पर चले, कहीं पर भी चले, उसे आधार की आवश्यकता है। वैसे ही दूसरी ओर अगर बंदर की बात हो, तो कभी वह आधार के साथ होता है, कभी आधार विहीन होता है, बिना आधार का होता है, हवा में होता है, अपने आधार पर होता है। वहीं तीसरी ओर अगर पक्षी के बारे में बात की जाए, तो एक बार जब पक्षी अपने आधार को छोड़ता है, तो लंबे समय तक निराधार अपने आधार पर लंबे समय तक उड़ता रहता है। हमारे सामने इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। एक पक्षी है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ट्रांसफर करता है, माइग्रेट करता है, तो कई सप्ताह तक वह बिना रुके चलता रहता है, उड़ता रहता है। तो यहाँ पर विहंगम शब्द जो है उसी अर्थ में रखा गया है कि जब मनुष्य अपने प्राकृतिक आधार को छोड़कर, प्राकृतिक आधार से क्या अर्थ है, प्राकृतिक आधार से अर्थ है शरीर, मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी जो आदतें बनी हुई है, इन सारी आदतों से ऊपर उठकर जब हम अपने आधार पर, स्वयं के आधार पर, आत्मिक आधार पर, चैतन्यत्व के आधार पर जब हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो वह लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक अपने आधार पर आनंद के अनुभव को प्राप्त करते हुए, अपने जीवन के सारे कार्यों को करते हुए जीवन के मुख्य उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी आधार पर यह शब्द विहंगम रखा गया है कि कैसे हम अपने प्राकृतिक आधार से ऊपर उठकर हम स्वयं के आधार पर, आत्मा के आधार पर, आत्मिक आधार पर पहुंचकर अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को प्राप्त कर, वहां तक पहुंचकर कैसे हम स्वयं के जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। विहंगम योग का एकमात्र ही उद्देश्य है। जैसा कि उद्घोष में हम सबों ने सुना, चंदन जी ने कहा कि स्वामी जी ने यह कहा कि जो वस्तु या जो स्थिति उन्हें प्राप्त हुई,
वे चाहते हैं कि वही स्थिति बाकी सामान्य जनमानस को भी उनकी योग्यता के अनुसार प्राप्त हो। और अगर हम सबों ने उद्घोष को ध्यान पूर्वक सुना तो स्वामी जी ने सब जगहों पर यही कहा कि मैं यह कराऊंगा, ऐसे करा दूंगा, आवागमन छुड़ा दूंगा, आपको अमरलोक पहुंचा दूंगा, अर्शक शून्य है उससे ऊपर चढ़ा दूंगा। सारी बातों को उन्होंने कहा कि मैं करा दूंगा। आपको क्या करना है? यदि विधिवत तुम साधन करी हो, आपको बस विधिवत ढंग से, विधिवत शब्द भी बहुत ही विशेष ढंग से व्याख्यायित है, लेकिन यदि आप विधिवत ढंग से अगर आप साधन करते रहे तो यह मेरी जिम्मेदारी है। अर्थात सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अमरलोक तक पहुंचाऊंगा। जो आपके और हमारे जन्म और मरण का जो चक्र है, मैं उस चक्र से आपको बाहर निकालूंगा, ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। उन्होंने 1924 ईस्वी में जब विहंगम योग की स्थापना की, उसी समय यह उद्घोष उन्होंने किया। तो संपूर्ण विहंगम योग संस्थान मात्र इसी उद्देश्य के तहत अपनी पूरी गतिविधियों को आगे बढ़ाए रखने में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का एकमात्र यही उद्देश्य है कि जो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का संकल्प है, कौन सा संकल्प? कि मैं कम से कम 1 लाख जीवों को मोक्ष प्रदान करूंगा। मात्र उसी उद्देश्य को लेकर आज यह संस्थान आगे बढ़ रहा है। तो खोज क्या हो रही है? खोज यही हो रही है कि कहां से वे जो योग्य शिष्य हैं वे सदगुरु से संपर्क स्थापित कर सके और सदगुरु उन्हें अपने आधार से उस अमर लोक तक पहुंचाने की व्यवस्था जो बनाए हैं उस पर उन्हें लेकर आगे चढ़ सके, बढ़ सके। तो इसी उद्देश्य के साथ हर शिष्य, विहंगम योग का हर शिष्य सदगुरु के प्रति समर्पित होकर सेवा, साधना और सत्संग और इसके साथ साथ स्वाध्याय, इन तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। हम लोगों ने अभी स्वरवेद में सुना भी, ओम जी ने हमें पंचम मंडल के 5म अध्याय से कुछ दोहों को सुनाया, जिसमें सेवा के बारे में बात आई, साधन के बारे में बात आई, सत्संग के बारे में बात आई। तो एक शिष्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम सदगुरु के प्रति स्वयं को अर्पित कर सकें। जब तक वह समर्पण भाव नहीं उठता है तब तक हम आध्यात्म में पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हमारा खुद का मन, सबसे बड़ी समस्या है हमारा खुद का अहंकार। इस मन और अहंकार से परे होकर जब हम स्वयं के आधार पर पहुंचते हैं तभी हम सदगुरु को पूर्ण रूप से पहचान पाते हैं, क्योंकि सदगुरु की पहचान भी बहुत आवश्यक है। बिना सदगुरु के पहचान की विहंगम योग की जो धार है उससे हम पूरी तरह से नहीं जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए साधना की आवश्यकता है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है, इसके लिए लगातार सेवा करते रहने की भी आवश्यकता है। यह सभी तीनों चीज हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें, जब हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का अर्थ यह नहीं है कि पुस्तक खोलकर और हम सब बस उसे पढ़ते रहें। स्व अध्याय अर्थात स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं को पढ़ना कि मैं कहाँ हूँ, किस धरातल पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस चीज की आवश्यकता है। थ्योरेटिकली हम सभी लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन क्या हम उन चीजों को अपने जीवन में उसी रूप में उतार पाते हैं या नहीं, इसका अवलोकन करने की स्थिति को स्वाध्याय कहते हैं। तो यह स्वाध्याय तो प्रतिदिन प्रतिपल होना चाहिए। मन से लड़ाई हर पल होती है, हर क्षण होती है, लेकिन बात यह है कि इन बातों को समझते हुए भी हम अपने जीवन को कैसे सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए आध्यात्मिक ढंग से भी अपनी उन्नति कर सकें।
इसीलिए ध्यान धारणा की आवश्यकता है। हम कैसे स्वयं को उत्साहित कर सकें, ऊर्जावान कर सकें, इसकी बहुत आवश्यकता है। आज के समय में अगर हम देखें तो हम अपने आप को इतना कई सारी चीजों में, इतने सारे कार्यों में हम स्वयं को घुला मिला चुके हैं कि किसी भी एक चीज को हमको छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। हम सभी लोग ऐसे एक जैकेट को, ऐसे एक कोट को पहने हुए हैं जिसमें शायद सैकड़ों पॉकेट बने हुए हैं और सभी पॉकेट जो है वो भरे हुए हैं, आधा भरे हो, पूरा भरे हो, और हमारा जैकेट जो है, कोट जो है वो इतना भारी हो गया है कि हमारा एक कदम भी आगे सही ढंग से बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें, इस पॉकेट में इतनी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे जीवन में हमेशा जरूरी नहीं है, कुछ समय तक जरूरी है। अब उस पॉकेट को खाली कर देना चाहिए ताकि उस कोट का, उस जैकेट का भार कम हो सके, हम तीव्र गति से आगे बढ़ सके। जैसे छोटा सा उदाहरण एक और है। एक बच्चा है, बच्चे के पास एक खिलौना है, 4 साल का बच्चा है, उसके पास कुछ खिलौने हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। जब वह 4 साल के बाद जब 8 साल की उम्र में पहुंचता है, क्या वह खिलौना जो उसके पास है, क्या वह खिलौना अभी भी उसकी उपयोगिता के हिसाब से सही है या नहीं है? अगर उस 8 साल के उम्र में भी, एक उदाहरण के रूप में मैं ले रहा हूं, झुंझुना है मान लीजिए। अब 8 साल की उम्र के बच्चे के लिए वो झुंझुने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है वह बच्चा अभी भी, उसका लगाव उस झुंझुने से इतना अधिक हो कि वह उसे अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहता, और वह अभी भी घर में रखा है। उसे देखकर उसे शायद प्रसन्नता मिलती हो, नहीं भी देख रहा है तब भी उसके मन में यह भाव बना हुआ है। लेकिन धीरे 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 करके घर में इतने सारे खिलौने हो जाते हैं कि अब अगर एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो वह खिलौना खुद एक समस्या बन जाती है, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या उसी तरह से जो हम कोट पहने हुए हैं प्रतिदिन के आधार पर, उसमें जितनी सारी चीजें हैं, क्या उसको हम इस ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं क्या कि जो हमारे पास पॉकेट हो वो पॉकेट हुक के साथ हो, जब चाहे लगा लें, जब चाहे निकाल कर रख दें, जितनी जरूरत हो उतने ही पॉकेट को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ सकें। जिस दिन हम यह कला सीख जाएंगे, उस दिन हम अपना टाइम मैनेजमेंट समझ जाएंगे, उस दिन हम अपने जीवन को सही दिशा में जिस ढंग से आगे बढ़ाना है, जो हम चाहते हैं, उसमें समय देते हुए हम आगे बढ़ पाने की क्षमता को उजागर कर पाएंगे। इसके लिए भी हमें स्वाध्याय की आवश्यकता है और मन पर कंट्रोल की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें सुचारू ढंग से प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रति समय जब मौका मिले तब सत्संग में जुड़कर हमें इन बातों को समझने और याद करते रहने की आवश्यकता है। नहीं तो प्राकृतिक कार्यों में हम इतना घुले मिले हुए हैं कि स्वयं के लिए समय नहीं मिलता। तो जब स्वयं के उत्थान के लिए समय नहीं मिलेगा तो हम स्वयं को मजबूती प्रदान कैसे करेंगे? विहंगम योग उसी आधार को प्रदान करता है कि कैसे हम स्वयं को मजबूत कर सकें, स्वयं को हम अपने आधार से जोड़कर आगे बढ़ सके, ताकि जिसके लिए भी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका भी ध्यान रखना है, परिवार है, समाज है, देश है, इसका भी ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब स्वयं को हम मजबूत बनाए रखेंगे। तो उसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता है, स्वयं से स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता है। मूल रूप से विहंगम योग यहीं से प्रारंभ होता है कि कैसे हम स्वयं को स्वयं से जोड़ सके। आज मैं शब्द जरूर हमारे सामने उपस्थित है, लेकिन हम सभी उस मैं से सिर्फ अहंकार के रूप में शायद जुड़े हुए हैं, मैं के अस्तित्व से नहीं जुड़े हुए कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, क्या हूं, किस लिए हूं। जब तक हमें इसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है तब तक हम यूं ही भटकते रहेंगे। और अभी भजन में चंदन जी ने एक वाक्य कहा
कि सिर्फ पुस्तक पढ़ने से, सिर्फ पढ़ने से उलझन हो सकता है बढ़ जाए। पुस्तक में हम जितनी सारी चीजें पढ़ते हैं वह किसी न किसी का अनुभव है। जब तक हम उसके उस अनुभव से स्वयं के अनुभव को नहीं जोड़ते हैं, तब तक उस पुस्तक के पढ़ने का पूर्ण रूप से अर्थ उजागर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी पुस्तक हो। तो उस पुस्तक को, चाहे आध्यात्मिक पुस्तक हो या किसी भी प्रकार का पुस्तक हो, जब हम स्वयं को उसके अनुभव से अपने अनुभव को जोड़ पाने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम यह कहते हैं कि हमने उस पुस्तक का अनुभव प्राप्त कर लिया। स्वरवेद एक ऐसा सदग्रंथ है जिसको स्वामी जी ने समाधिजन्य अवस्था में लिखा। समाधिजन्य अवस्था में, इसका अर्थ यह है कि आत्मा को परमात्मा के साथ पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ढंग से जोड़े रखकर जो अनुभव प्राप्त होता चला गया, जो रसास्वादन मिलता चला गया, उस आधार पर उसको शब्दों में पिरो दिया गया। तो जब उस आधार को हम पढ़कर समझने की कोशिश करें, तो उस आधार को हम पूरी तरह से तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम स्वयं को, स्वयं के अनुभव को उस अनुभव से जोड़ पाएं। तो जब वह अनुभव समाधि की अवस्था में होकर के प्राप्त किया गया, तो आवश्यकता यह है कि हमें भी अपने आत्मिक आधार को उन्नत बनाकर उस अनुभव को प्राप्त करने की क्षमता हम उजागर कर सकें। और इसी में ध्यान जो है वह सबसे अधिक सहयोगी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबों को ध्यान से अवश्य जुड़ना चाहिए। कई तरह के ध्यान हैं। विहंगम योग के ध्यान पद्धति की बात की जाए तो 5 प्रकार की श्रेणियां हैं। इन्हीं श्रेणियों की चर्चा वेदों में भी आई है। विहंगम योग की पंचभूमि की जो साधना है, उसमें प्रथम 3 भूमियां कुछ इस प्रकार हैं कि हम मन को तैयार करते हैं। मन को बाहर में रोककर, मन को अंदर में रोककर, मन को शुद्ध कर उसके उद्गम स्थान में उसको लय करने का प्रयास होता है। तब जाकर मन जो है वो पूर्ण रूप से शांत होता है। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तब आत्मिक आधार उजागर होता है। और चतुर्थ और पंचम भूमि की साधना आत्मिक आधार से की जाती है। सबकी शुरुआत प्रथम भूमि की साधना से ही होती है कि कैसे हम मन को निग्रह कर, उसे रोक कर, जहां उसे लगाना है वहां लगाने की हम क्षमता उजागर कर सके। तो प्रथम भूमि की साधना की चर्चा गीता के 6ठे अध्याय में भी की गई है कि कैसे ध्यान करना है। तो मैं चाहूंगा कि आज हम सब लोग एक साथ मिलकर ध्यान करें, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी अपनी तैयारी हो जानी चाहिए, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं एक साथ। ओम एक ऐसा शब्द है जिसे पंच ब्रह्मांडी शब्द कहते हैं, जिसमें निरंजन, ओम, सोहंग, शक्ति और ररंग है। ये पांचों ब्रह्मांडी शब्द हमारे ब्रह्मांड में, यानी इस शरीर के जो सिर है, उस सिर में हो रहा है, प्रतिपल हो रहा है। अगर ध्यान की गहराई में अगर हम उतरे तो इन शब्दों को हम सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं आंतरिक आधार पर। लेकिन अभी की स्थिति में आइए हम सब लोग ओम का उच्चारण करते हैं, जो कि 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और म। जितनी गहराई से हम इसका उच्चारण करेंगे उतना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लंग्स पे, फेफड़ों पर इसका सही प्रभाव पड़ता है, मन पर, शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक बार ओम का उच्चारण करता हूं। जूम पर इसकी आवाज बहुत ही सटीक ढंग से शायद ना आए अभी, लेकिन एक बार मैं ओम का उच्चारण करता हूं, फिर हम सब लोग एक साथ ओम का उच्चारण करें। तो मैं गहरी सांस ले रहा हूं।
अलग अलग व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है, तो हम लोग कोशिश ऐसा करें कि हम लोग सब लोग एक साथ शुरू करेंगे, जिसका जहां खत्म हो जाए पहली बार, ठीक है, फिर दूसरी बार जब शुरू हो तो फिर सब लोग एक साथ शुरू करें, तीसरी बार फिर सब लोग एक साथ शुरू करें। तो आप सब लोग आंखों को बंद कर लें और एक साथ गहरी सांस लें। पुनः सांस लें। तीसरी बार चौथी बार पांचवी और आखिरी बार जस्ट रिलैक्स। कुछ थोड़ा समय दें अपने श्वास को वास्तविक स्थिति में आने के लिए। शांत चित्त होकर श्वास प्रश्वास का अवलोकन करें। ओम के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह बहुत ही सकारात्मक ध्वनि है। इसका प्रभाव हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क और हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। तो अब आइए यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं। हम लोग 2 प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, या 2 प्राणायाम करें। 2-3 मिनट लगेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए किसी भी एक हाथ को ले लें, उसमें रिंग फिंगर और थंब का प्रयोग करें। एक बार में एक नासिकाग्र को नासिका को बंद करेंगे और दूसरी तरफ से सांस लेंगे, और सांस छोड़ने के पहले नाक और उंगली को बदल लें और फिर सांस को छोड़ें। याद रखें कि उंगली को हमेशा जब छोड़ना है सांस को तभी बदलना है, सांस लेते समय उंगली और नासिका को नहीं बदलना है। तो हम लोग 4-5 राउंड करते हैं। आइए चलें हम लोग एक साथ करें। अंगूठे से पहले नाक को बंद करें एक साइड से और श्वास लें, इनहेल। अब उंगली बदल लें और सांस छोड़ दें। पुनः सांस लें उधर ही से, इधर से सांस छोड़ें, उंगली बदलें और सांस छोड़ें। सांस लें, सांस छोड़ें।
एक बार सांस छोड़ें, सांस लें, उंगली बदलें और सांस छोड़ें, सांस लें, उंगली बदलें, सांस छोड़ें। सांस लें, बदलें, सांस छोड़ें, सांस लें, बदलें, छोड़ें, सांस लें, बदलें, छोड़ें। लास्ट राउंड, इन, change, exhale, in, change, exhale, just relax। कुछ सेकंड और दें, श्वास प्रश्वास की गति को देखते रहें। और अब आइए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिसमें आंखों को साधारण ढंग से बंद रखना है। 2 उंगलियों से आंखों को ढक लें, इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर और छोटी वाली जो उंगली है उसको नाक को छुआएं, टच करें। थंब से दोनों कानों को बंद कर लें, इस तरह से बंद करें कि कोई भी बाहरी आवाज सुनाई ना दे। अभी रुक जाइए, मुख भी बंद रहेगा और श्वास को हम गहरे श्वास के साथ अंदर लें और नाक से ही सांस को छोड़ना है गहराई के साथ। लेकिन सांस छोड़ते समय हुंकार की आवाज करनी है, कुछ इस तरह से। मैं सांस ले रहा हूं, जितनी देर तक हो सके और जितने फोर्स के साथ हो सके आप हुंकार की आवाज के साथ नाक से श्वास को छोड़ें। 5 बार करें। आप अपनी तरफ से गिन लें, कान बंद होने की वजह से आप बाहर की आवाज सुन नहीं सकते हैं, इसलिए आप खुद से 5 बार करें। आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, मुख भी बंद। आंखों को बंद ही रखें थोड़ी देर के लिए। 85 तरह के 85 टाइप्स के प्राणायाम होते हैं, सभी एक साथ नहीं कर सकते। 2-3 अगर हम अपने जीवन में जोड़ लें तो सर्दी खांसी बुखार हमसे कोसों दूर रहेगा। अगर किसी को सिर दर्द का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है,
तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही कामगर सिद्ध होता है, इसे आप प्रतिदिन करें। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे प्राणों के ऊपर। 5 तरह के प्राण हैं। एक जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक वह प्राण शक्ति है। एक अपान शक्ति है, जिस उदाहरण के रूप में डकार ले रहे हैं तो वह अपान शक्ति है जो हवा को बाहर छोड़ता है। एक समान वायु है जो नाभि के पास में होता है। एक उदान वायु है। और तो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। व्यान जो प्राण वायु है वह ब्लड सर्कुलेशन में सहयोग करता है। प्राणायाम करने से प्राण शक्ति सुचारू ढंग से हमारे शरीर में चलती रहती है। तो अब आइए चलते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान के पहले हम लोग 3 बार गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर लें प्रार्थना के रूप में। उम्मीद है सभी को याद होगा। तो आइए एक स्वर में हम सभी गायत्री मंत्र करते हैं 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब आइए शांत चित्त होकर पहले हम बैठने की व्यवस्था कर लें। सिद्धासन में बैठना चाहिए।